Good morning, children. Today we are going to discuss about gametogenesis. The previous lecture we have already discussed about male reproductive system as well as female reproductive system. Today we'll be discussing about especially about spermatogenesis and structure of sperm. So now let us start the topic. As you can see on the screen, gametogenesis. You know that the primary sex organ in case of males is testis and in case of females it is ovaries. Now they produce gametes. Now the process of formation of gametes, sperms and ovum is called as gametogenesis. In case of males it is called as spermatogenesis. In case of females it is called as oogenesis. So now let us start with the topic as such. We have already started. I will continue with the topic. Now in case of testis, the immature germ cells, they produce cells which is called as spermatogonia. Now spermatogonia starts, they are produced from the inner linings of the seminiferous tubules when the males attains the puberty. Now the total number of chromosome present in the spermatogonium cell is 46. That is, it is first of all it is diploid. So now see, you can see the this is the inner lining of the spermatogonium. You can see the cells, spermatogonium as such. This is the cell, spermatogonium. Now spermatogonium contains 46 number of chromosome. Now some of the spermatogonium cells, first of all spermatogonium cells undergoes normal mitosis to increase the number. Now some of the spermatogonium cells, they are called as primary spermatocytes. They have also 46 number of chromosome. They undergo meiosis to form secondary spermatocytes which have only 26 number of chromosome. तो होता क्या है, कुछ उसमें से जो सेल्स होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, वो अंडर वो होते हैं मियोसिस, और मियोसिस में जाने के बाद यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाने के बाद उनमें जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो रिड्यूस हो जाता है और वो 23 हो जाता है. नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर अंडरगो सर्टेन चेंजेस and they are now called as spermatids. Now these spermatids further they mature to form spermatozoa. Now each spermatozoa consists of head, neck, middle piece and tail, and they have only 26 number of chromosome. That is 23 number of chromosome. That is, the number of chromosome have now reduced to half. They are called as haploid. Now you can see this on the screen as such. ये है आपका स्पर्मेटोजोआ, यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सेल्स जो हैं वो मैच्योर हो चुके हैं. Let me tell you one more thing. At the time of puberty there is a particular hormone called GnRH, gonadotrophin releasing hormone. It is a hypothalamic hormone. That means it is released by the hypothalamus in the brain, present in the brain. You know that pituitary and hypothalamus are situated very near to each other. The anterior part of the pituitary receives this hormone which is released by the hypothalamus. इसका मतलब जो GnRH है, gonadotrophin releasing hormone, that is received by the anterior part of the pituitary gland. Now the anterior part of the pituitary gland, in response to the hormone which it receives from the hypothalamus, it releases another two hormones. एक का नाम होता है FSH और एक का नाम होता है LH. यानी कि ये कौन रिलीज कर रहा है? ये रिलीज कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी. जो FSH होता है और LH होता है, ये दो हार्मोन वो रिलीज करते हैं. जो LH का टारगेट ऑर्गन है, LH मतलब जो हार्मोन रिलीज हुआ है, इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो लेडिक सेल्स होते हैं, जिसको हम इंटरस्टिटियल सेल्स बोलते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, लेडिक सेल्स. और जो लेडिक सेल्स हैं, इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन्स का सिक्रीशन करना, इनको सिंथेसाइज करना और सिक्रीट करना.
और जो दूसरा हार्मोन है जो FSH है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का और FSH, यही दो हार्मोन रिलीज होते हैं। तो FSH जो है उसका टारगेट होता है, ऑर्गन होता है सर्टोली सेल्स, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सर्टोली सेल्स को वो स्टिमुलेट करते हैं ताकि दे कैन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के नॉर्मल प्रोडक्शन, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ को बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मैच्योर स्पर्म्स को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसके बारे में हो गया हार्मोन। मतलब कहने का सिंपल मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो सबसे पहले स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, FSH और LH। दोनों का टारगेट ऑर्गन अलग अलग है। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का जो टारगेट ऑर्गन है वो इंटरस्टिटियल सेल्स है, उसको सेल्स ऑफ लेडिक भी कहते हैं। उनका रोल होता है एंड्रोजेंस बनाना, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन बनाना, और ये हेल्पफुल होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो FSH है उसका टारगेट ऑर्गन होता है, FSH हार्मोन का टारगेट ऑर्गन होता है सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स का काम होता है दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, नाउ ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म्स एज सच। You see, this is the head portion, this is the middle piece, this is the tail, ये वाला पोर्शन नेक है। तो चार पोर्शन है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। लॉन्ग नेक होता है, मोटाई। तो हेड सिक्रीट्स अ काइंड ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एज एक्रोसोम, which is useful for the process of fertilization. As it enters inside the egg, it dissolves the membrane सराउंडिंग दी एग एज वेल एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी एग। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हार्मोन सिक्रीट होता है। ओके, नाउ सॉरी, इसमें एंजाइम सिक्रीट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द एग एज सच। ना ये देखिए नेक है, इसके यहाँ पे ये आप मिडिल पीस देख रहे हैं, दिस कंटेन्स नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड यू नो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये टेल को मोटाइल बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेल को तो मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगे तभी टेल जो है अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेगा। अब लेट मी टेल यू, ये जो हेड है, ये जो इसमें जो एंजाइम है, ये एक्रोसोम, ये जो एग के पास की जो लेयर्स होती हैं, आप आगे पढ़ोगे, जोना पेलुसिडा है या एग की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको डिसॉल्व कराता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, इसका ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है, तभी वो स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो सकता है। स्पर्म के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट बात। There are about 200 to 300 million sperm which are released at a particular single ejaculation in case of human male. यानी 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म, 200 मिलियन से 300 मिलियन स्पर्म्स का मतलब होता है 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म्स आर रिलीज्ड फॉर ejaculation. And out of this, 60% of them should have proper structure, shape and size for fertilization to happen. Now, out of this, 40% should be hypermotile. कहने का मतलब ये है 20 करोड़ में से 60 करोड़ का शेप और साइज सही होना चाहिए। उसमें से भी जो 40% है, 40% है, उन 40% का हाइपर मोटाइल वो होने चाहिए, बहुत उनकी मोटिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, वरना फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिकॉज इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम द स्पर्म हैज टू रीच फ्रॉम द वेजाइना क्रॉसिंग द सर्वाइकल कैनल एज वेल एज द यूट्रस टू रीच द फेलोपियन ट्यूब एम्पुला इस्टिमस जंक्शन वेयर द eggs is present and where the fertilization happens. So for that a limited amount of time is only limited amount of time is present.
क्योंकि एग भी जब रिलीज हो रही हो, स्पर्म भी रिलीज हो रहा हो, वो ठीक उसी समय फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, वरना फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द home assignment as such. Briefly explain the process of gametogenesis. तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को आप इन योर ओन वर्ड्स यानी आप एक्सप्लेन कर सकते हो. हमने आपको ऑलरेडी बताया है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया seminiferous tubule have they release a kind of cell, first cell, that is called as spermatogonium. This spermatogonium changes into undergo mitotic division and form large number of cells. They changes into primary spermatocytes. Primary spermatocytes undergo meiosis to form secondary spermatocytes. These secondary spermatocytes further change into spermatids and finally into spermatozoa. तो इसको आपको ऐसे बताना है. इंटरस्टिटियल सेल और सर्टोली सेल्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ. इंटरस्टिटियल सेल्स जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन यानी कि चीफ एंड्रोजेंस का बनाते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और सर्टोली सेल्स ये नर्व सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इनका रोल जो है वो डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म्स में है. डायग्राम ऑफ द टेस्टिस एंड लेबल ऑल इट्स पार्ट्स वो आप देख के एनसीईआरटी बना सकते हो. I would like to tell you that sperm along with the plasma, seminal plasma, which is secreted by the various kind of glands, this together forms a semen. Now, I hope you like my topic today. Thank you. Have a nice day.